یہ دورہ بالکل ایک نان پولیٹیکل دورہ تھا ان کا بچوں کا، جو صرف اپنے والد کے لیے، ان کی رہائی کے لیے اور ان کی جو کرنٹ کنڈیشنز ہیں وہاں پہ، اس پہ بات کرنے کے لیے اور اس پہ آواز اٹھانے کے لیے وہ یہاں پہ آئے تھے۔ ایک قیدی کو یعنی اس کی بہنیں بھی نہیں مل سکتی اور پھر ہیئرنگ کے دوران بھی اس کی فیملی کے لوگ نہیں جا سکتے، اس کا کیا سدباب ہے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ کہاں ٹکرے مارے؟ عام جو لوگ ہیں پاکستان کے، ان کے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں اور اب میرے خیال ان کی باری ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کے اس کے متعلق احتجاج کریں۔ عجیب سا ماحول تھا، مطلب مجھے آج پہلی دفعہ میں نے دیکھا جا کے کہ ایکچولی یہ ناانصافی اور انجسٹس کا مطلب کیا ہے۔ پاکستانی قوم اور یہ عمران خان صاحب اور ان کی فیملی اب ایک جنگ کی سچویشن میں وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ کرنٹ رجیم کے دماغ میں چیز بیٹھ چکی ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو ہم نے دبا لیا۔ ایک بار پھر سے پاکستانیوں پر حملہ کیا گیا ہے، جیسے 26 نومبر میں گولیاں چلی تھی، ایک بار پھر بجوڑ میں جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ اتحاد ٹاؤن لاہور، رحیم یار خان اور سیالکوٹ کی شاندار ڈیلیوری کے بعد ناؤ لانچنگ اتحاد ٹاؤن فیز 3 پائن ایونیو پر واقع، مستقبل کی 4 نئی اسٹرکچر روڈ سے کنیکٹڈ، لاہور رنگ روڈ اور فیروز پور روڈ سے ڈائریکٹ ایکسس، ایئرپورٹ ڈی ایچ اے اور رائبن روڈ سے 15 منٹ کی دوری پر، 3 سال کا آسان پیمنٹ پلان، بکنگ 10% سے اور صرف 1% ماہانہ قسط ادا کر کے اپنے پلاٹ کے مالک بنے۔ Invest with the most trustworthy real estate brand of Pakistan، کیونکہ فائدہ اسی میں ہے۔ اتحاد ٹاؤن فیز 3۔ For booking and details, please call 042-111-998877۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی مظہر بلال صاحب اسلام آباد سے۔ ویڈیو کال پر ہمیں جوائن کیا ہے سینئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سجاد برقی صاحب، جو اوورسیز پاکستانیوں کے سیکرٹری ہیں۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر سندس علی، اور یو کے سے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف سیاسی لوگ نیوز کے بلال حسین چودھری صاحب۔ بہت شکریہ آپ سب کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے ہم سجاد برقی صاحب آپ سے سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، یہ جو عمران خان صاحب کے بیٹے امریکہ آئے تھے، ان کی انہی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں جو پچھلے 2.5 سالوں سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے۔ سر، کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ؟ کوئی سیکرٹ ملاقات بھی ہوئی ہے کہ بس انہی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ اور ان ملاقاتوں کا امپیکٹ کیا پڑا ہے پاکستانی گورنمنٹ پہ؟ جی السلام علیکم بلاول بھائی اور ہمارے لسنرز کے لیے بھی۔ دیکھیں، دورہ ہو گیا ان کا جی، وہ آئے تھے یہاں پہ۔ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ دورہ بالکل ایک نان پولیٹیکل دورہ تھا ان کا بچوں کا، جو صرف اپنے والد کے لیے، ان کی رہائی کے لیے اور ان کی جو کرنٹ کنڈیشنز ہیں وہاں پہ، جس طرح ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے اور اس پہ آواز اٹھانے کے لیے وہ یہاں پہ آئے تھے۔ اور دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ جو کن سے ملاقاتیں ہوئی کن سے نہیں ہوئی، لوگوں کو تھوڑا ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو لوگ سیاست میں پاور میں ہوتے ہیں وہ روز روز بدل نہیں جاتے ہوتے، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت دیر تک رہتے ہیں۔ اگر ایک الیکٹڈ آفیشل وہاں پہ ہے تو اب اگلے سال بدل تو نہیں جائے گا انلیس کہ نیا الیکشن ہوگا، تو ہمیں انہی لوگوں کے پاس پھر سے جانا پڑتا ہے، انہی کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ دورہ بڑا افیکٹو تھا، بڑا پروڈکٹیو تھا، اور وہ اپنا موقف جو ہے وہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا انہوں نے، اور بتایا کہ ان کے والد کو کیا کنڈیشنز ہیں اور ان کو کیا ضروریات ہیں ان کی وہاں پہ، اور ان کی ہسٹری بتائی کہ ان کو کس طرح 2 سال سے انہوں نے بغیر کسی اور مطلب جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں، لیگل ان کی کنڈیشنز ہیں، فیملی کے جو ملاقات نہ کرنے کی بات ہے، تو بہت سی باتیں جو کہ پرسنلی انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کی۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ کوئی ایسے لوگوں سے نہیں ہوئی ہیں، اور بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو کہ ہم ڈسکلوز نہیں کرتے، تو بس اس کو اتنا ہی رہنے دیجیے۔ سجاد برقی صاحب، کوئی اندر کی خبر آپ کے پاس ہو کہ اس چند دنوں کے میں کچھ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور جس میں عمران خان صاحب کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی قیدی
है उनके लिए बेहतरी हो सकती? कोई अंदर की खबर अमेरिका से आपके पास? जी नहीं, मैं बिल्कुल आदी नहीं हूँ खामखा में लोगों को गलत खबरें देने का या गलत रास्ते पे लगाने का या ऐसी अफवाहें उड़ाने का कि लोगों की जो होप्स हैं उसको आप बढ़ा दें और फिर वो कल को वो बात ना हो। फैक्ट्स जो है वो आप सबके सामने है। मैं नहीं समझता कि कोई अंदर की ऐसी कोई खबर है, अगर है तो एटलीस्ट मैं उसमें शामिल नहीं। जी मजहब अल्लाह साहब, सर सजाद बरकी साहब हमारे साथ अमेरिका से ज्वाइन किया आज। अच्छा, मैं बिल्कुल सजाद बरकी साहब से सवाल करना चाहता हूँ। बरकी साहब, आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में लगे हुए हैं और बहुत से मुल्कों में आप एहतजाज भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबोगरीब है। मैं यहाँ एहतजाजी हवाले से जो तैयारियां हो रही हैं उस पर बात नहीं करूंगा। ये जो एक चीज है कि एक कैदी को यानी उसकी बहनें भी नहीं मिल सकती और फिर हेयरिंग के दौरान भी उसकी फैमिली के लोग नहीं जा सकते, इसका क्या सदेबाब है? इसका क्या इलाज है? कहाँ टक्करें मारे, कहाँ लोग कहीं इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, कहाँ जाएं? कि यानी एक जो राइट है, जो बुनियादी हक है एक कैदी का, कि जब उसका ट्रायल हो रहा, पहली बात तो ये है कि जेल के अंदर ट्रायल क्यों हो रहा है? जेल के बाहर होना चाहिए, अदालतों में होना चाहिए। लेकिन ये चूंकि यहाँ उसके सियासी मुखालफिन इतना है कि कहीं लोग इमरान खान की कोई तस्वीरी झलक ना देख लें, कोई उनकी सूरत ना नजर आ जाए, तो इसलिए एक तो जेल में ट्रायल हो रहा है और फिर उसमें जो सितम है वो ये है कि उसकी फैमिली के अफराद भी ट्रायल में नहीं जा सकते, फिर ना मुलाकात हो सकती है ना दोस्तों की हो सकती है। इसका क्या हल सोचा आपने? थैंक यू बल्ला साहब। पहली बात तो मेरा ख्याल है कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसकी निशानदेही की है और ये हम सब के जहन पे ये सवाल है और यही एक हमारी स्ट्रगल है इस वक्त कि हम एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं जिसको कि किसी किस्म की कोई कानून की आइन की पासदारी का उनको बिल्कुल ख्याल ही नहीं है और उन्होंने इस तरह के जज जो है वो हाजिर सर्विस कर लिए हैं, बिठा लिए हैं जो कि कानून के मुताबिक बातें और फैसले करने को समझते नहीं कि वो उनके पाबंद है। जब पिछले हफ्ते भी हम यहाँ पे थे तो यही बातें जो आपने की हैं ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उठाई गई प्रेस में भी और यहाँ की लीडरशिप के सामने भी कि लोग वो हैरान हो जाते हैं सुन के कि ये ट्रायल कैसे हो सकता है जबकि आपके विटनेसेस नहीं आप ला सकें, आपके वकील जो हैं वो वहाँ पे ना जा सके, आपकी फैमिली ना जा सके, कोई मिल ना सके, ऐसा ये कौन सा ट्रायल है? ये तो बिल्कुल एक यूजलेस सी एक एक्सरसाइज है जो कि ये लोग सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं कि हम ट्रायल कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई ट्रायल नहीं है, इसको ट्रायल नहीं कहते हैं। तो जवाब इसका मैं क्या दे सकता हूँ जी? देखें, जवाब इसका तो बल्ला साहब यही है कि कौम के सामने ये हकीकतें सामने आ रही हैं, आम जो लोग हैं पाकिस्तान के उनके सामने ये बातें आ रही हैं और अब मेरा ख्याल उनकी बारी है कि वो भी खड़े होकर इसके मुतालिक एहतजाज करें। ये एहतजाज सिर्फ पीटीआई का नहीं रह गया हुआ, ये खान साहब की फैमिली का सिर्फ एहतजाज नहीं रह गया, ये सारे पाकिस्तान का एहतजाज है कि जो बेसिक रूल्स है जिंदगी के, ह्यूमैनिटी के, अगर उनको भी आपने फॉलो नहीं करना तो फिर हम कैसे मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं? कल को ये अगर आज तो खान साहब के साथ हो रहा है, इसका मतलब है कि हर पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट में किसी भी शख्स को इस तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो आई वेरी सीरियस सिचुएशन। आई विश कि मेरे पास इसका कोई जवाब होता। तो सजाद बरकी साहब, इसका जवाब हम डॉक्टर सुंदर अली से ले लेते हैं। आज इस्लामाबाद में अडयाला जेल भी गई थी उन्होंने। मैडम, आपके पास क्या अडयाला जेल की क्या रिपोर्ट है और अलीमा खान से आज मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? जी आज मैं पहली दफा अडयाला के बाहर इस तरह, और मैं वहाँ पे हम 11:30 बजे पहुंच गए थे क्योंकि वहाँ पे अलीमा आपा भी थी और नौरीन आपा, डॉक्टर लोग थे, पार्टी के लॉयर्स भी थे, वर्कर्स भी थे। तो ये हर ट्यूसडे को होती है, लेकिन आज जल्दी इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे आज तोशाखाना 2 का
वो हेयरिंग थी, लेकिन इस हेयरिंग में किसी को भी नहीं दी गई कि वो अंदर जाएं, इसको देखें हेयरिंग किस तरह हो रही है, खान साहब को वहां पे लाया नहीं लाया, क्या उनकी एविडेंस है, क्या कौन विटनेसेस हैं, मतलब बिल्कुल ये फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं था। और जितना टाइम हम वहां पे थे, फिर 4 घंटे 5 घंटे सब वहीं पे थे, और उनकी मुलाकात का टाइम फिर आ गया 2 बजे, तो वो भी किसी को मिलने नहीं दिया गया, फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, तीनों बहनों को, और ना ही जो उनके लॉयर्स हैं, ना ही उनके कोई भी सियासी कॉलीग्स, तो सब लोग बाहर। और फिर कोशिश भी हो रही थी कि पुलिस वाले जो वहां पे थे SHO उनसे बात करें, और जो जज है अंदर जो हेयरिंग इसको करवा रहे हैं उनसे बात की जाए, लेकिन वो जज बाहर नहीं आए, उनसे बात नहीं हुई। तो एक बड़ी एक कैफियत, डेस्परेशन, अजीब सा माहौल था। मतलब मुझे आज पहली दफा मैंने देखा जाके कि एक्चुअली ये नाइंसाफी और इनजस्टिस का मतलब क्या है, कि लोग बैठे हुए हैं बाहर, और उनका जो बेसिक एक आईनी हक है कि आप जाके अपने प्रिजनर को मिलें जो आपके जेल के अंदर है, उनको मुलाकात नहीं की करने दी गई। और अगले हफ्ते अब 5 अगस्त है, तो अब इसमें फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसलिए नहीं करवा रहे मुलाकातें क्योंकि 5 अगस्त से पहले कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान कुछ इस तरह ना पाए। तो वहां पे इतनी गर्मी में वो, लेकिन फिर भी लोग खड़े रहे उम्मीद से कि हो सकता है मुलाकात करने दें। लेकिन हर हफ्ते यही सेम स्टोरी रिपीट हो रही है कि बहनों को तो पिछले हफ्ते भी नहीं मिलने दिया गया, और अब अगले हफ्ते 5 अगस्त को मुझे लगता है और भी ज्यादा लोग वहां पर आएंगे एक एहतजाज के तौर पे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के, ये मैंने पहले हमेशा टीवी पे उनकी मीडिया टॉक देखी थी बहनों की और सब लोग को, तो आज वहां पे जाके देखा कि एक्चुअली किस चीज से गुजरते हैं हर ट्यूसडे को, किस गर्मी में लोग वहां पे खड़े होते हैं, और किस तरह कोई उनको बस एक उनको आदत हो गई है कि ये हर मंगल को ये होना है, और कोई आगे से जो पुलिस वाले हैं उनके भी हाथ में असल में कुछ नहीं। यूरोप में पढ़ना हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है, लेकिन बजट और कॉम्प्लेक्स वीजा प्रोसेस इसे मुश्किल बना देती है। नियापोलिस यूनिवर्सिटी पाफोस यूरोपियन साइप्रस दे रहा है एक जबरदस्त ऑफर। सिर्फ 4,000 यूरोज इनिशियल डिपॉजिट के साथ एडमिशन सिक्योर करें और लें 40% से 50% तक स्कॉलरशिप। फाउंडेशन प्रोग्राम 5,000 यूरोज विद IELTS 4 बैंड, 6,000 euros per year for bachelor program, 7,000 euros for complete 1.5-year masters after 40% scholarship. The admission processing time is 2 to 3 days and visa approx time 3 months. ना embassy interview की टेंशन, ना यूनिवर्सिटी इंटरव्यू का झंझट, और तो और 2+2 एजुकेशन सिस्टम या गैप ईयर्स भी एक्सेप्टेबल है। स्टूडेंट्स खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, इसलिए 20 आवर्स पर वीक काम करने की भी इजाजत है। IELTS सिर्फ 5 बैंड रिक्वायर्ड है या PTE 58, यानी किसी भी स्टूडेंट के लिए अचीवेबल। अगर आप भी चाहते हैं सिंपल प्रोसेस और कम कॉस्ट में यूरोप की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो अभी कॉन्टैक्ट करें educationlinks.pk पर या हमारे ऑफिस आके 1-on-1 सेशन करें। जी बिलाल हुसैन साहब आप जी मदर साहब आप कंटिन्यू करें प्लीज। नहीं सर आप पहले कर ले, फिर मदर साहब के बात। जी डॉक्टर साहब आपने जो भी पिक्चर बताई है वहाँ की आज अडियाला के बाहर, ऑब्वियसली बड़ी अफसोसनाक है। इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के साथ ये सलूक ऑब्वियसली बहुत अफसोसनाक है, लेकिन एक जंग का माहौल है। पाकिस्तानी कौम और ये इमरान खान साहब और उनकी फैमिली अब एक जंग की सिचुएशन में वो जंग लड़ रहे हैं। वो इसमें कभी जंग में कभी किसी पार्टी का पड़ना भारी होता है, किसी का कभी दूसरे का। मेरा सवाल सजाद बरकी साहब से है। सजाद साहब, सर आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी और दोबारा आज यही करना चाहूंगा। करंट रजीम के दिमाग में चीज बैठ चुकी है कि हमने पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की लीडरशिप को हमने दबा लिया। लीडरशिप आइदर या वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिक चुके हैं, या वो डर चुके हैं। लोगों को गोलियां मार के, उन पे मुकदमे करके, उन पे प्रेशर डाल के उनको दबा लिया गया है। किसी तहरीक के वो मूड में नहीं है, वो उनमें वो जिन्होंने कही ना सांस आती नहीं कि वो बाहर निकल सका। सर बड़ी सिंपल सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो बड़ा माहौल क्रिएट हो चुका है। इनको बाहर से कहीं से प्रेशर आया है, जिनकी ये बात सुनते हैं, जिनके आगे जी हजूरी करते हैं, जहाँ इनके पैसे पड़े हुए हैं, जहाँ ये हाथ बांध कर मौतबाना अंदाज में पेश होते हैं, वहां से कोई प्रेशर आया तो ही इमरान खान साहब को कुछ सहूलतें हैं और उनको रिलीज करेंगे। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब इस बात को हम जैसे कुछ पाकिस्तानी जो समझ चुके हैं, पता नहीं आप और आपकी लीडरशिप बाकी जो है आपके कुलीग इस बात को समझे कि नहीं समझे। प्लीज इस पे आपके कमेंट चाहिए। थैंक यू। जी
आपने देखे, आप लोग वहाँ पे ऑन ग्राउंड है, ऑब्वियसली आपको हमारे लोगों से बेहतर वहाँ के हालात का बेहतर पता है। लेकिन देखें, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम अपनी स्ट्रगल को गिव अप कर दें, या हम ये सोच के बैठ जाएंगे जी बस ये तो अब ऐसे ही होगा, अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक दबाव की बात है, देखें यहाँ से दबाव हम जितना भी कोशिश करके क्रिएट कर सकते हैं वो हो रहा है। और वो एक बात बड़ी मैं क्लियरली लोगों को बताऊं कि दबाव जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि ओपनली या एक पब्लिकली नहीं क्रिएट किया जाता, ये प्राइवेट रिसोर्सेज के थ्रू क्रिएट किया जाता है। इसकी मीटिंग्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती, और तरह के वसाइल यूज किए जाते हैं टू रीच आउट। तो वो सब चीजें हो रही हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरा आपसे इख्तलाफ है कि पाकिस्तान में लीडरशिप या वो लोग जो है वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं नहीं समझता हूँ ये। मैं समझता हूँ कि जी अगले 5, 7, 8 दिन में आप देखेंगे एक मूवमेंट बिल्ड होगी इस मुल्क में। इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है। मैं आज, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता, शायद आज या कल हमारी मीटिंग है पीटीआई की लीडरशिप की इस्लामाबाद में, जिसमें वो एक पूरा लायामल जो है वो देंगे, लोगों के सामने रखेंगे कि क्या हो रहा है। और मैं मोमेंटम बिल्ड होता देख रहा हूँ, लोग बाहर निकलने को तैयार हो रहे हैं। शायद अभी उन नंबर्स में नहीं है जिनमें हमें जरूरत है, लेकिन ऐसे ही होता है, कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। लेकिन गिव अप नहीं करना। देखें, हमें ये कभी नहीं सोचना कि जी ये तो अब खत्म हो गया, ये उनके हाथ में। अगर वो इतने कंफर्टेबल हों तो वो इस तरह सारी दुनिया में भागे भागे ना फिर रहे हों। जी बिल्कुल सजाद बरकी साहब, अभी बिलाल हुसैन साहब ने एक बार फिर गोली का जिक्र किया है। बजोड़ में जो है एक बार फिर गोली चलाई गई है। मजहर बल्ला साहब, आप इस पे रोशनी डालें कि एक बार फिर से पाकिस्तानियों पर हमला किया गया है। जैसे 26 नवंबर में गोलियां चली थी, एक बार फिर बजोड़ में जो हालात बने हुए हैं, और आप क्या देख रहे हैं सर, आपकी क्या राय है? मैं तो बिलावल साहब पूरे मुल्क पे तबसरा करता हूँ। देखिए, बाजोड़ में जो हुआ बहुत बुरा हुआ, तिरा में जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये जो पंजाब में, अब आप देखें कि वो बागपत में 2 औरतों को कत्ल कर दिया गया है। सियालकोट में एक बच्चा और बच्ची, बेचारे 6 साल की बच्ची और 3 साल का बच्चा, उनको वहां करके कत्ल कर दिया गया है। तो इस तरह के बेशुमार वाकयात हो रहे हैं। मैं इसीलिए कल भी आपसे, आज भी कह रहा हूँ कि यार ये हुकूमत किसकी है यहाँ पे, किसको पूछे लोग। यानी ना तो हुकूमत किसी के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, ना किसी के लिए तालीम है, ना सेहत है, ना कोई खुराक है, ना छत है। यानी आधा पाकिस्तान गुर्बत की आलमी नकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहा है, और ऊपर से अमन अमान नहीं है। तो जो लोग सीधी गोलियां बरसा रहे हैं, और खास तौर पे ये जो पुलिस है, ये तो पिछले 2-3 सालों में पुलिस ने बदमाशियों का रूप धार लिया है। और आप देखिए कि ये एक दहशतगर्दी के जज के रिमार्क्स है कि अगवा बराए तावान के 95% केसों में पुलिस का इन्वॉल्व है। और जब पुलिस जो है वो इस सतह पर आ जाए, तो मैं तो समझ रहा हूँ ये बिल्कुल बरकी साहब ने बात दुरुस्त की है कि पीटीआई का इशू नहीं रह गया, अब तो ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। मैं भी अर्ज यही कर रहा हूँ कि एक सोशल जस्टिस का इनकलाब पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, चूंकि लोग तंग हैं। किसी किसान का पीटीआई से ताल्लुक हो ना हो, किसान रुल गया है। किसी मजदूर का पीटीआई से ताल्लुक हो ना हो, मजदूर जो है वो उसकी तजलील हो गई है, उसकी नौकरी नहीं है। 70% जो पाकिस्तान की आबादी है वो यूथ पर मुश्तमिल है। किसी नौजवान का पीटीआई से ताल्लुक हो ना हो, वो जो 70% आबादी है उसके सामने बेरोजगारी का समंदर है, और लोगों का ताल्लुक पीटीआई से हो ना हो, महंगाई है, गुर्बत है, और अमन अमान का मसला है। तो अब तो ये रियासत का मसला बन गया है, पूरे मुल्क का मसला बन गया है, पूरे पाकिस्तान का मसला है।
جی بالکل مظہر بلال صاحب جی سر آپ نے بالکل کہتے ہیں نا کہ رول آف لا، یس رول آف لا کے لیے اب لوگ نکلیں، اسٹرگل کریں، تحریک چلائیں تاکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم ہو سکے. جی بالکل، بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کا. سجاد برقی صاحب لاسٹ میں ہمیں یہ بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آ رہے تھے تو ان کا آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کہ وہ 5 اگست سے پہلے آئیں گے یا 5 اگست کے بعد آئیں گے؟ آپ کے پاس اس بارے میں کوئی انفارمیشن ہے تو سر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی نہیں، میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ فیصلہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ واپس جب یو کے میں گئے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ وہ کریں گے کہ انہوں نے جانا ہے نہیں جانا یا کس طریقے سے وہاں پہ جانا ہے. تو مجھے کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. ایکسل کیبلز 99.99% پیور کاپر سے تیار شدہ، ہمارا معیار، ہمارا یقین. ایکسل کیبلز، روشن پاکستان کی پہچان.